Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at Ease. Today we are going to start class 9th biology. Next chapter, which is chapter number 8, nutrition. Nutrition means ग़िज़ायत. हम इस चैप्टर में प्लांट्स की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस किस ग़िज़ायत की ज़रूरत होती है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं इसके अलावा कितने टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है प्लांट्स में. देन न्यूट्रिशन इन मैन देखेंगे, किस तरह की न्यूट्रिशन पाई जाती है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स और इनकी कमी हो जाने की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी हो जाती है. फिर डाइजेशन इन मैन है, डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, egestion, and then role of liver in digestion, absorption of food, and disorders of gut like diarrhea and constipation. So let's move to the exercise. First of all, we are going to do objectives. Encircle the correct answers. Select the mismatch. इनमें से mismatch क्या है? That is C, fats and starch. Deficiency of vitamin K causes anemia. Period of rapid growth and development called adolescence. Deficiency of dietary protein causes an imbalance in the gastrointestinal system. Kwashiorkor. An animal that migrates great distances would obtain the greatest benefit from storing its energy as fats. Which of the following vitamins is correctly associated with its use of vitamin A incorporated into the visual pigment of the eye? Which of the following statement describes pepsin? It's D. It begins with hydrolysis of proteins in the stomach. Which of the following is true of bile salts? That is C. They emulsify fats in the duodenum. In human digestive system, trachea and esophagus both connect to the pharynx. All the sources of calcium except red meat. Now move to blanks. Number 1 is seafood is an excellent source of protein because it's usually low in fats. Iron deficiency is associated with decreased cognitive abilities and resistance to disease. Wave of rhythmic movements of muscle contraction and relaxation called peristalsis. Liquid secreted by pancreas which contains a variety of enzymes. Living organisms which derive their food from dead and decaying organic materials called saprophytic. Nutrients that are needed in the highest concentration called macronutrients. Fertilizers are substances containing chemical elements such as manure or mixture of nitrates. High solubility of fertilizers also degrades ecosystems through eutrophication. Carbohydrates which digested quickly are called sucrose. Each gram fat supplies the body with about 9 calories. Now let's have definitions. We have 10 terms to define. Number 1 is vitamins. Vitamins are a group of substances that are needed for normal cell function, growth and development. Vitamins ऐसे group of substances होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें बॉडी सेल के फंक्शन करने के लिए, उनका ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए. Malnutrition, a term used to refer to any condition in which the body does not receive enough nutrients for proper function. It is a condition that results from nutrient deficiency or overconsumption. Malnutrition ऐसी condition होती है जिसमें बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं ले रही होती, या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रही होती है जरूरत से, या जरूरत से बहुत ज्यादा कम ले रही होती है, तो ऐसी कंडीशन malnutrition कहलाती है. Goiter is a condition in which the thyroid gland grows larger. The thyroid gland is a small butterfly shaped gland located in the neck below the Adam's apple. हमारी नेक में मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड जो कि बटरफ्लाई शेप होता है. जब ये जरूरत से ज्यादा ग्रो कर जाता है लार्जर, तो ये कंडीशन कहलाती है गोइटर. अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोगों की नेक जो है वो बहुत फूली हुई नजर आ रही होती है, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है गोइटर की. एनीमिया, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या इसे हम ब्लड की कमी भी कह सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन, इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंटली इनकम्प्लीट बॉल मूवमेंट्स. कॉन्स्टिपेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डायरिया. कॉन्स्टिपेशन बेसिकली कब्ज को कहते हैं. इनफ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंटली इनकम्प्लीट बॉल मूवमेंट होती है, और ये डायरिया का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. Obesity, an increase in body weight beyond the limitation of skeletal and physical requirement as a result of an excessive accumulation of fat in the body. Obesity एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेती है
हमारे जो स्केलेटल या फिजिकल रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा, जिसे मोटापा भी कहते हैं हम। स्टारवेशन इज द रिजल्ट ऑफ सिवियर और टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो कमी हो जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि अक्सर आपने थर के इलाके में देखा होगा, वहाँ के लोगों की जो फिजिकल हालत है, स्टारवेशन होती है, भूखा रह जाने की वजह से, या उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते, तो वो स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मटेरियल फूड स्टफ इनटू द माउथ और बॉडी। इंजेशन कहते हैं कोई भी मटेरियल माउथ के थ्रू बॉडी में जाना, तो इंजेशन कहलाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हम इंजेस्ट कर रहे हैं माउथ के थ्रू। काइम, a semi-liquid mass of partially digested food that made in stomach। काइम कहते हैं एक ऐसा लिक्विड मास बन जाना जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का होता है स्टमक के अंदर जाके। जो हम खाना खाते हैं वो पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, फिर उसके साथ कुछ लिक्विड्स मिलते हैं और एक वो थिक सा सेमी लिक्विड सी बॉल ऑफ मास बन जाती है जिसे काइम कहते हैं। अल्सर, अ ब्रेक इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन with loss of surface tissue, disintegration and necrosis of epithelial tissue and often pus। अल्सर कहते हैं कि अल्सर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक हो जाना, जिसकी वजह से जो टिश्यूज हैं, टिश्यू की जो सरफेस होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सेल्स जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और अक्सर जो है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर एरिया पे पस पड़ जाती है। अक्सर अल्सर आपने सुना होगा, स्टमक अल्सर हो गया, तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर जख्म बन जाते हैं जिसे हम अल्सर कहते हैं। Now we have differences. Let's have differentiation between these terms in tabulated form. So the first one is fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are soluble in fats and water soluble are soluble in water. These requires bile salts and fats for their absorption, and water soluble vitamins, they are easily absorbed. These are generally stored in liver, and the water soluble are not stored in body except vitamin B12. These do not act as coenzymes and these act as coenzymes. Examples for fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K, and water soluble vitamins are B complex and vitamin C. Next one is marasmus and kwashiorkor. These are two disorders. Marasmus is the deficiency of proteins and kwashiorkor is because of deficiency of both proteins and calories. There is some weight loss and in kwashiorkor there is severe weight loss. Marasmus में थोड़ा बहुत weight loss होता है और kwashiorkor disorder में बहुत ज़्यादा weight loss हो जाता है. Thinning of muscles and limbs, and in kwashiorkor thinning of limbs. Limbs means हाथ और पैर, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो है उनके मसल्स बहुत थिन हो जाते हैं और kwashiorkor में बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाती है सिर्फ लिम्स की. देयर इज एन एनलार्जमेंट इन द फैटी लिवर सेल्स एंड देयर इज नो एनलार्जमेंट इन द फैटी लिवर सेल्स. इट इज कॉमन इन इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज. छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो हैं 1 साल तक, उनमें ये पाई जाती है और kwashiorkor जो है वो चिल्ड्रंस बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज में मौजूद होता है ये डिसऑर्डर. द नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एंड केमिकल डाइजेशन इज अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. Teeth tear the food to break into pieces and salivary amylase breaks complex carbs into simple. Peristalsis, muscle contractions break down food. Pancreatic enzymes break down fats, carbs and proteins. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, food is prepared for simple inorganic substances such as carbohydrate, water and sunlight. Food is obtained directly or indirectly from autotrophs. Heterotrophs जो है वो directly या indirectly depend करते हैं autotrophs पे, और autotrophs जो है वो mainly plants होते हैं जो कि अपना खाना खुद prepare करते हैं. Presence of ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज नेसेसरी. ऑटोट्रॉफिक के लिए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जबकि हेटरोट्रॉफिक के लिए कोई पिगमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता. फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड डे टाइम एंड फूड कैन बी प्रिपेयर ऑल द टाइम. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी प्लांट्स या एल्गी हैं उन सब में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है, जबकि तमाम एनिमल्स और फंजाई में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. Inorganic fertilizer, they are more or less chemical substances, and organic are complex mixture from animal, human and plants residue.
दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स मोर रैपिडली। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उनसे ज्यादा जल्दी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक से बहुत स्लोली होते हैं। दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल। इनऑर्गेनिक हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक जो है वो लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनऑर्गेनिक एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं। दे डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इनऑर्गेनिक जो है वो फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो है वो इंक्रीज कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, जरखेजी को। नाउ लेट्स मूव टू शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स क्यों जरूरी होते हैं? Plants need to be fertilized because most soil does not provide the essential nutrients required for optimum growth. Plants have the food they need to flourish. There are 6 primary nutrients that plants require in fairly large quantities: carbon from carbon dioxide in the air, hydrogen from water, oxygen from water and air, nitrogen, it helps plants make the proteins they need to produce new tissues. Phosphorus, it stimulates root growth, helps the plant set buds and flowers, improves vitality and increases seed size. Potassium, it helps the plants make carbohydrates and provides disease resistance. It also helps regulate metabolic activities. फर्टिलाइजर इसी तरह जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जैसे हम अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो सके, इसी तरह प्लांट्स के लिए 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। उनमें कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हाउ स्टमक लाइनिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट। स्टमक की जो लाइनिंग है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती है एसिडिक इन्वायरमेंट से? प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम ऑटो डाइजेशन, इसे ऑटो डाइजेशन भी कहते हैं कि स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीज हो रहा है वो उसी स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता, ऐसी क्या लाइनिंग मौजूद है स्टमक में? The stomach is protected by epithelial cells which secrete a bicarbonate rich solution that coats the mucosa. Bicarbonate is alkaline, a base, and neutralizes the acid secreted by the parietal cells, producing water in the process. This continuous supply of bicarbonate is the main way that your stomach protects itself from autodigestion, the stomach digesting itself, and overall acidic environment. स्टमक में मौजूद एसिड जो है वो अल्कलाइन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है, जैसे एसिड और बेस मिलकर वाटर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है स्टमक का वो न्यूट्रल हो जाता है। वाई नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? ऑल प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। It is most imperative element for proper growth and development of plants, which significantly increases and enhances the yield and its quality by playing a vital role in biochemical and physiological functions of plant. The delicate balance of substances that is important for maintaining life is an important area of research, and the balance of nitrogen in the environment is no exception. When plants lack nitrogen, they become yellowed with stunned growth and produce smaller fruits and flowers. Farmers may add fertilizers containing nitrogen to their crops to increase crop growth. Without nitrogen fertilizers, scientists estimate that we would lose up to 1/3 of the crops we rely on for food and other types of agriculture. प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन की वजह से ही जो प्लांट की प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, फ्लावर्स की ब्लूमिंग है, फ्रूट्स का बनना है, वो सब पॉसिबल हो पाता है। अगर बैलेंस ना हो नाइट्रोजन का प्लांट की फर्टिलाइजर्स में या जो भी खाद हम डालते हैं प्लांट्स में उसमें, तो फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए प्लांट जो है वो जो फर्टिलाइजर्स हमें मिलते हैं बाहर से उनमें जरूर लाजमी मौजूद होता है। वाई फैट्स आर कॉल्ड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। फैट्स जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड क्यों कहा जाता है उन्हें? फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। सबसे स्लोएस्ट सोर्स है लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विद अबाउट 9 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट जो है वो बॉडी को 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है।
more than twice that supplied by proteins और carbohydrates। दुगना जो है वो सप्लाई करता है प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट से। मीन्स अगर हम प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं उससे डबल हो जाता है अगर हम फैट्स को इनटेक करते हैं। बिकॉज फैट्स आर सच एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, द बॉडी स्टोर्स एनी एक्सेस एनर्जी एज फैट्स। फैट जो है वो बॉडी स्टोर कर लेती है एज एन एक्सेस एनर्जी। द बॉडी डिपॉजिट एक्सेस फैट इन द एब्डोमेन एंड अंडर द स्किन। और ये डिपॉजिट होता है एब्डोमेन में या फिर स्किन के नीचे की जो लेयर है जिसे सबकुटेनियस लेयर भी कहते हैं, वहां पर ये मौजूद होता है टू यूज व्हेन इट नीड्स मोर एनर्जी। और फिर जब यूज हो जाता है जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। द बॉडी में ऑल्सो डिपॉजिट एक्सेस फैट इन ब्लड वेसल्स एंड विद इन ऑर्गन्स। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स या ऑर्गन्स में भी डिपॉजिट हो जाता है वेयर इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो और डैमेज ऑर्गन्स ऑफन कॉजिंग सीरियस डिसऑर्डर। अगर ये ब्लड वेसल्स में स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है उसमें रुकावट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मोस्टली ये अंजाइना या हार्ट अटैक का बाइस बनता है। इसकी जो डिपोजिशन है उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं ब्लड वेसल्स और फिर हार्ट अटैक या मिनी हार्ट अटैक हो जाता है। वाई ग्राइंडिंग एंड लुब्रिकेशन आर नेसेसरी फॉर स्वेलविंग। निगलने के लिए मीन्स खाना निगलने के लिए लुब्रिकेशन और ग्राइंडिंग क्यों जरूरी है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ इज नोन एज चुइंग और मैस्टिकेशन। जब हम फूड को ग्राइंड करते हैं अपने माउथ में टीथ की मदद से उसे चुइंग या मैस्टिकेशन भी कहते हैं। इट इज यूजफुल बिकॉज इसोफेगस can pass only small pieces through it as well as enzymes cannot act on large pieces of food। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इसोफेगस है हमारा उसमें से छोटे पीसेस ही पास हो सकते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए उन्हें छोटे पीसेस ऑफ फूड रिक्वायर्ड होते हैं, वो बड़े पीसेस को नहीं तोड़ते। Lubrication of food by mixing saliva secreted by salivary gland. It has two main functions. Adds water and mucus to food. Partial digestion of starch by saliva which contains an enzyme salivary amylase. जो lubrication है फूड में वो हमें मिलती है हमारे सलाइवा से। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो वाटरी फ्लूइड रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसके दो फंक्शन होते हैं बेसिकली वाटर और म्यूकस को ऐड करना फूड में ताकि एक थिक सा काइम सा बन जाता है। इसके अलावा पार्शियल डाइजेशन भी हो रही होती है, साथ साथ हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। Now let's move to long answering questions. Question number 1 is describe environmental hazards related to chemical fertilizer. Chemical fertilizer की वजह से environment में क्या-क्या खराबियां पैदा हो जाती हैं। Environmental hazards related to chemical fertilizers. An environmental hazard is a condition which has a potential to threaten natural environment or adversely affect people's health, including pollution and natural disasters. The farmers apply fertilizer for better growth of their crops, but on the other side these fertilizer pollute water and soil as well। जो हम artificial fertilizers यूज करते हैं जिसमें chemicals बहुत ज्यादा होते हैं उनकी वजह से pollution बढ़ जाता है, natural disasters आना शुरू हो जाते हैं और water और soil जो है वो बहुत ज्यादा pollute हो जाता है। Number 1 is soil nutrient holding capacity. The massive quantities of inorganic fertilizers affect the soil nutrient holding capacity. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में उनकी नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है बहुत इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से। यूट्रोफिकेशन, द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन मींस एन इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स टिपिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। Emission of greenhouse gas. Storage and application of some nitrogen fertilizers may cause emission of greenhouse gases. ज्यादा एप्लीकेशन और स्टोरेज की वजह से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो कॉज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को की इमिशन मीन्स वो रिलीज होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है। सॉइल एसिडिटी, ammonia gas may be emitted from applied inorganic fertilizer. This extra ammonia can also increase soil acidity. जो फर्टिलाइजर्स हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनमें अमोनिया गैस होती है,
उस गैस की वजह से जो सॉइल में मौजूद एसिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमोनिया रिलीज हो रही है वो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट्स पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। पेस्ट प्रॉब्लम्स, excessive nitrogen fertilizer can lead to pest problems by increasing their reproduction rate। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिनमें ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। कीड़े मकोड़े जो हैं, पेस्ट जो हैं, जो कि क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, और जब वो क्रॉप्स पे बैठते हैं वहां पर उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। न्यूट्रिएंट बैलेंस, it recommended that nutrient content of the soil and nutrient requirement of crops should be carefully balanced with application of inorganic fertilizers. It is critical to apply no more than it is needed. Any excess in nutrient will definitely develop pollution of any kind. यही recommend किया जाता है कि जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जितने जरूरी है क्रॉप्स के लिए उतने ही उन्हें प्रोवाइड किए जाएं, बैलेंस फॉर्म में किए जाएं, ज्यादा अमाउंट में, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज ना किए जाएं, ताकि किसी भी किस्म का पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट की खराबी का बाइस ना बने। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन विद सुटेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और इंटेस्टाइन को हमने डिस्क्राइब करना है, उसके फंक्शंस को। तो सो द फंक्शन ऑफ स्टमक इज जे शेप थिक वॉल्ड एक्सपेंडेबल बैग लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ abdomen just beneath the diaphragm. The stomach has three regions: cardiac just after the esophagus, fundus, the largest part of stomach, and pyloric part located at the other end of stomach and opens into small intestine. Stomach जो है वो एक J शेप का thick walled expandable bag है, जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, डायफ्राम के नीचे। 3 रीजन होते हैं स्टमक के। जो ऊपर वाला रीजन है उसे कार्डियक एंड कहते हैं, बीच वाला फंडस कहलाता है, और जो जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है वहां पर उस एंड को हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। स्टमक मसल्स चर्न एंड मिक्स द फूड विद एसिड्स एंड एंजाइम्स ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर डाइजेस्टेबल पीसेस। स्टमक के जो मसल्स हैं वो उनमें एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। वो क्या करती है, फूड को मिक्स कर देती है एसिड्स और एंजाइम्स के साथ, फिर वही फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में ताकि वो डाइजेस्टेबल हो सके वो पीसेस। व्हेन फूड एंटर्स इनटू स्टमक द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक वॉल। इसके बाद फूड जब एंटर हो जाता है स्टमक में तो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कि स्टमक वॉल्स में प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मौजूद होते हैं हमारे स्टमक में वो कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में, जिसे पेप्सिन कहा जाता है। HCl kills माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड। जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं जो हम खा लेते हैं उसको किल कर देता है। पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द फूड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। पेप्सिन का जो फंक्शन है मेन वो क्या है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। इसके बाद मजीद फूड जो है वो टूटता है जिसे चर्निंग कहते हैं। चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस हीट व्हिच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। चर्निंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि लिपिड कंटेंट जो है मींस के फैट्स है उसे मेल्ट कर देता है फूड में से। बाय द टाइम फूड इज रेडी टू लीव द स्टमक, उसके बाद फूड जो है वो स्टमक को छोड़ने के लिए तैयार होता है। इट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू द थिक पेस्ट लाइक लिक्विड कॉल्ड काइम। और उस वक्त जो है वो बिल्कुल एक लिक्विड बन जाता है जिसे काइम कहा जाता है, पेस्ट बन जाता है। काइम इज देन स्क्विटेड डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन ऑफ फूड कंटिन्यूज। उसके बाद वो स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां मजीद डाइजेशन कंटिन्यू होती है। हियर यू कैन सी दिस इज इसोफेगस, और ये जो पार्ट है ये कार्डियक एंड भी कहलाता है, ये फंडस होता है। यहाँ पर पाइलोरिक एंड होता है। ये पूरा स्टमक जे शेप स्टमक है, यहाँ से फूड निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। देन फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाए।
छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। जिस तरह हमारे टावल जो है उसका टेक्सचर होता है, छोटे छोटे से हमें धागे बाहर निकले हुए नजर आ रहे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है विलाई का। द विलाई आर द व्हीकल्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स कैन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। जो विलाई हैं वो व्हीकल होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ओवर विच एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन अकर। वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो सके। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब मटेरियल्स अक्रॉस द इंटेस्टिनल लाइनिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम। यही स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल को और इंटेस्टिनल लाइनिंग से वो ब्लड स्ट्रीम तक उन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। Question number 3 is what are vitamins? Describe types of vitamins. Vitamin is an organic molecule or related set of molecules, an essential micronutrient that an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism. Vitamin organic molecule होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसे कंप्लीट करने के लिए। दे आर फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में नॉर्मल हेल्थ को और डेवलपमेंट में बॉडी की। लैक ऑफ वाइटामिन कैन कॉज सेवरल डिजीजेस। कमी हो जाने की वजह से बहुत सी डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। दो टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो फैट्स को सॉल्युबल करते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं and are less excreted from the body as compared to water soluble vitamins. And water soluble vitamins are soluble in water. These are vitamins B and C. Cooking or heating destroys the water soluble vitamins more readily than the fat soluble vitamins. Describe mineral deficiency disease in human. अगर humans में mineral की deficiency हो जाए तो कौन से diseases होती हैं? Diseases resulting from deficiency of mineral are relatively rare among humans. Some are given below. Number 1 is goiter. Goiter is a condition in which thyroid gland becomes enlarged and it results in swelling in neck. Goiter is caused by an insufficient amount of iodine in diet. Iodine is used by thyroid gland to produce hormones that control the body's normal functioning and growth. गोइटर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी नेक है वो स्वेल हो जाती है क्योंकि यहाँ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से वो प्रॉपरली हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहे होते जो बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में या ग्रोथ करने में हेल्प करती है। सेकंड है एनीमिया, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। द टर्म एनीमिया लिटरली मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड। खून की कमी जिस भी शख्स को है उसे एनीमिया कहते हैं कि इसे एनीमिया की प्रॉब्लम है। द कंडीशन इज कॉज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिड्यूस टू अ लेवल लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो जाना रेड ब्लड सेल्स का वो एनीमिया कॉज करता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन में 4 एटम्स होते हैं आयरन के। इफ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन, अगर बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में आयरन को रिसीव नहीं कर पा रही है, एडिकेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन विल नॉट बी फॉर्म, तो प्रॉपर नंबर नहीं बन पाएंगे हीमोग्लोबिन के। सो देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग रेड ब्लड सेल्स, अ पर्सन बिकम्स वीक एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल। जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बॉडी को कम हो जाएगी जिसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाती है। नंबर 3 है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर लेना। इट इज अ फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, development and metabolism. The effects of over intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity, decline in energy expenditure. High intake of carbohydrates and fats leads to obesity, diabetes and cardiovascular problems. Similarly, high dose of vitamin A causes loss of appetite and liver problems. Excess dose of vitamin D can lead to deposition of calcium in various tissues. बहुत ज्यादा किसी भी न्यूट्रिएंट का इनटेक कर लेना डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। कोई भी मिनरल है या विटामिन है अगर वो बहुत ज्यादा ले लिया जाएगा तो उसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है। नंबर 5 इज डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन। मेल न्यूट्रिशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन पे? Malnutrition hurts people both mentally and physically. The more malnourished a person is, the more nutrients the person is missing. The more likely person will experience health issues. Some of them are given below.
मेल न्यूट्रिशन जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से इंसान को हर्ट करता है। नंबर 1 इज स्टारवेशन। इट इज अ सिवियर डेफिशिएंसी इन कैलोरिक एनर्जी इनटेक। इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कैन कॉज परमानेंट ऑर्गन डैमेज एंड इवेंचुअली डेथ। कैलोरिक इनटेक डेफिशिएंसी होती है, मींस के प्रॉपर अमाउंट में हमें खाना नहीं मिल रहा, जिनमें कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से कंडीशन बहुत ज्यादा लंबी चले तो इसकी वजह से जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। हार्ट डिजीजेस। द टर्म हार्ट डिजीज इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. Cardiovascular disease generally refers to conditions that involve narrowed or blocked blood vessels that can lead to heart attack, chest pain, angina, or stroke. Heart problems occur in those people who take unbalanced diet, fatty foods, increased blood cholesterol level. It obstructs the blood vessels leading to heart disease. Heart diseases basically कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कहा जाता है इन्हें। होती किस वजह से है? ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, बहुत ज्यादा फैटी फूड लेने की वजह से फैट जो है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से चेस्ट पेन, एंजाइना या हार्ट अटैक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन। पीपल डू नॉट स्केड्यूल देयर मील्स. This irregularity causes many health problems like constipation. It can be well defined, a condition in which there is difficulty in emptying the bowels, usually associated with hardened feces. कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं कि अगर हम अपना स्केड्यूल बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं खाने का, जिसकी वजह से प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता और फिर उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर आने में, एम्प्टी होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। The last one is obesity. It is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may have a negative effect on health. Obesity is most commonly caused by a combination of excessive food intake, lack of physical activity, and genetic susceptibility. Obesity is known as mother disease and may lead to heart problems, hypertension and diabetes. ओबेसिटी बेसिकली बहुत ज्यादा खा पी लेने से जो बॉडी का फैट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे मोटापा भी कहते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है। इफ यू वांट दीज नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म यू कैन कॉन्टेक्ट मी, द नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।